is overburdened now these days. Yes. Good evening, participants, delegates. Thank you for joining Steel Connect, and happy Women's Day to all of you. And today we have Dr. Ritu Santwani with us, and today she is going to give information on PCOS, prevention and cure of PCOS. So before we start with the session, let me give a quick introduction of our ma'am. So, ma'am has 20 plus years of extensive experience in obstetric and gynecology service, along with specialization in cosmetology and IVF in test tube baby. And ma'am is passionate about sharing knowledge and welfare activities. She is host and keynote speaker of more than 1,000 plus webinars, summit trainings and awareness sessions for public, corporates and medical fraternity. Ma'am has written over more than 200 plus articles and columns for various health journals and newspapers. Dr. Ritu have earned various awards and recognition for her significant contribution in health and social care services. Ma'am is also associated with the World Society of Cosmetic Gynecology and Middle East Association of Aesthetic Medicine and Reconstructive FGM Surgery. Ma'am is currently director of Pune Test Tube Baby Center and Shamwell Women Clinic. Also, ma'am is an honorary professor for obstetric and gynecology department of WIMS Medical College in Kajrula. So, ma'am, I welcome you on our platform, and I will hand over the session to you, ma'am. And happy Women's Day, ma'am. Yeah, thank you, Nishant, so much, and a very good evening to everyone. I think today is a very, all of you agree with me, today is a very special day for all of us. So first of all, as Nishant has also told, happy Women's Day. So today, as we all know, this year, the International Women's Day, the theme is the break the bias. So we all women, and today we have selected this topic, the PCOS. Friends, today this topic is focused on, the lecture is focused on the public awareness for the patient awareness. So my conversation will be in mix Hindi and English. क्योंकि जब भी मैं YouTube पे बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करती हूँ तो बहुत सारे लोगों का ऐसा फीडबैक आता है कि मैम पूरी इंग्लिश मत बोलो, बीच बीच में कुछ हिंदी भी बोलो जिससे हमें कुछ समझ में आए. तो अब अभी क्या होता है, आजकल PCOS के तो बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं हमें, तो everyone is having a some or the other query related to PCOS. So लोग आते हैं कि हाँ मैम हमने तो गूगल पे पढ़ा था कि हमको PCOS है, तो अब PCOS क्या कभी ठीक हो सकता है या इसका क्या निदान है, क्या हमेशा हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही खानी पड़ेंगी? फिर पेशेंट्स होते हैं मैम हम तो कई डॉक्टर्स के पास गए थे, तो जब भी हम जाते हैं हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए. तो जब तक हम वो खाते हैं तब तक हमको पीरियड्स आते हैं, उसके बाद से वापस इरेगुलर हो जाते हैं. अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी द PCOS पेशेंट्स की, मैं कभी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ और क्या मुझे कैंसर का खतरा है? सो आई हैव सिलेक्टेड दीज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आर द रिलेटेड मिथ्स विद द PCOS और उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और क्योर कैसे करना है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस. सो माय टॉक टुडे विल बी फोकस्ड ऑन what are the practical questions we are getting in our day-to-day OPD, and I will try to answer all that questions. So I am just sharing my screen. So my all presentations always start with Durga Mata Stuti. We all have gone through very bad phases of the corona. Now everything is going towards the normalization, but my all the presentations, whether national or international, I will start with this Mata Rani Stuti. Ya Devi Sarvabhuteshu Chikitsa Rupen Sanstita Namastasei 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 Namo Namah. So today our talk is focused on the patient education activity. So I've made the presentation in a very easy language जिससे कि सबको समझ में आ जाए.
So as we have already started, today is a very important day, the Happy International Women's Day. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बधाइयाँ. So as we know, the theme of this year is break the bias. So today we are going to discuss about the myths and facts on PCOS and how it can be prevented and cured. So now what is PCOS? अब ये PCOS क्या है? बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैम हमने तो गूगल करके देखा, हमें जो ऐसे सिम्टम्स है तो मुझे लगता है कि मुझे PCOS हो गया है या PCOS हो गया है. तो अब इसमें क्या होता है? Usually the patients complains with infrequent or prolonged menstrual period. पेशेंट बोलते हैं हमें 1.5 महीने में 2 महीने में पीरियड आता है, या कुछ बोलते हैं जब हम गोली खाते तभी हमें पीरियड आता है, उसके बिना हमें पीरियड नहीं आता है. और कुछ लोगों में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है एट द एब्नॉर्मल प्लेसेस, मींस अपर लिप पे उनको ज्यादा ग्रोथ हो रही है, चिन पर ज्यादा ग्रोथ हो रही है हेयर की, या उनको नेवल के पास में, नाभि के पास में ज्यादा ग्रोथ हो रही है. सो अब PCOS एक ऐसा प्रॉब्लम है जो इंसिडेंस देखा गया है, इट इज अफेक्टिंग 1 in 5 women and it is a health problem that can affect a woman menstrual cycle. ऑफ कोर्स बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इसके लिए आते हैं कि उनको पीरियड्स बराबर नहीं आ रहा है. दूसरा बहुत सारे पेशेंट्स जो आते हैं इसके लिए कि उनको बेबी कंसीव करना, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है. हार्मोन्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, और कुछ ऐसा बोलते हैं कि मैम हम तो इतना खा भी नहीं है तो भी हमें वेट गेन हो रहा है. सो दीज आर द सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ PCOS. सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ PCOS? So as we all are aware, अभी जैसे हमने डिस्कस भी किया कि मोस्टली जो पेशेंट इसी तरह प्रेजेंट करते हैं, बालों की ज्यादा ग्रोथ होना, इरेगुलर साइकिल्स होना, या उनको माहवारी का नियमित रूप से नहीं आना. कई बार गोली खाए बिना उनको पीरियड्स नहीं आते, या 2-3 महीने के बाद पीरियड आते हैं. और कुछ बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी स्किन पर बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, एक्नी, और स्किन का ऑयली होना, डेंड्रफ होना, वेट गेन, वजन का बढ़ना. और कुछ लोगों में यू कैन सी द मेल पैटर्न बाल्डनेस और थिनिंग ऑफ हेयर. एब्नॉर्मल प्लेसेस पर हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, लेकिन स्कैल्प पे, सर पे बाल कम हो रहे हैं, थिन हो रहे हैं. पैचेस ऑफ स्किन on the necks, arms and breast and thighs are blacker. Skin tags, pelvic pain, anxiety and depression. तो बहुत सारे पेशेंट, क्योंकि I do the practice of this cosmetology also, so बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको ब्लैकनिंग ऑफ स्किन होता है, मतलब वो बोलते हैं गले के पास की स्किन बहुत काली पड़ गई है, या आर्मपिट्स में बगल की स्किन बहुत काली पड़ गई है. तो these are the some common symptoms with this usually the patient presents. तो PCOS में क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोग यही पूछते हैं. तो ये क्या कभी ठीक हो सकता है? सो यस, सो दिस PCOS is due to the reproductive hormones are out of balance. These hormones play in the role in the PCOS. अब कौन-कौन से हार्मोन्स जो मेन रोल प्ले करते हैं? इसमें होता है एक एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन होता है. हाई यूजुअली इन द PCOS के पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्नी, मतलब बहुत सारे पिंपल्स आना, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना, वेट गेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. सेकेंड इज द इन दिस पेशेंट्स इज द इंसुलिन. थर्ड इज द हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल इन दिस इज द प्रोजेस्टेरोन. सो अब PCOS को अगर ना ठीक किया गया तो बहुत सारी लड़कियां बोलती है मैम अब मुझे हर महीने गोली लेने की क्या जरूरत है, क्या इसको PCOS का अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगी तो क्या मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी? यस. तो अब PCOS से रिस्क फैक्टर्स फॉर PCOS इन एडल्ट्स इंक्लूड द टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, या जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब जिसमें वो वैसे नॉर्मल है पर जब लेडी प्रेग्नेंट हुई गर्भावस्था के दौरान शुगर का बढ़ना, जेस्टेशनल डायबिटीज. But if there is a family history of PCOS, then also there is a risk factor of PCOS. So now we will discuss one by one कि इससे related बहुत सारे जो myths हैं उनके में कितनी सच्चाई है और उनका क्या-क्या निवारण है. So ये जितने भी myths और facts लिए सभी जो questions मुझे बहुत सारे social media में after programs we receive, तो उन्हीं के बारे में हमने डिस्कस किया है one by one.
सो पहला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, मैम क्या ऑल द वुमेन्स विद पीसीओएस हैव ओवेरियन सिस्ट? सो एज द नेम सजेस्ट, that the PCOS refers to cyst, but this is false. For many women, the tiny follicles are present in the ovary and may resemble as a strand of pearls on the ultrasound. The follicles may look like small cysts, but they are very different. The follicles are not cancerous and do not cause any pain. So, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब भी हम सोनोग्राफी के थ्रू डायग्नोस होती है जब पीसीओएस, तो उसमें एक नेकलेस टाइप का पैटर्न मिलता है, स्ट्रैंड ऑफ पल्स। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को कुछ यूरिन इन्फेक्शन हुआ है या उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो उस वजह से जब वो सोनोग्राफी के लिए गए तब उनको सोनोग्राफी के डॉक्टर बोलते हैं कि आपको तो पीसीओएस है, आपको जाकर गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। सो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं, मैडम क्या मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज डायग्नोज हो गया है तो क्या मुझे बच्चे नहीं हो सकते? मैंने बहुत जगह ऐसा पढ़ा है और ऐसा सुना भी है, तो मुझे इसकी बहुत टेंशन है, तो आगे मैं कंसीव कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? सो फ्रेंड्स, आप इसके लिए देखिए, PCOS इज अ कॉमन कॉज ऑफ फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन, but that does not mean that carrying a pregnancy to term is impossible. Usually पेशेंट्स में, ऐसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट्स में यूजुअली क्या होता है, एक एसोसिएटेड वेट गेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यूजुअली हम पेशेंट्स को बोलते हैं वेट रिडक्शन के लिए, तो लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं आजकल हैबिचुअल टू जंक फूड। इवन तो लॉकडाउन था तब भी उनको जंक फूड के लिए इतना चाहिए कि वो पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर करके खा रहे हैं। सो यस, लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी डाइट ऑफ कोर्स improves the chances of conceiving. यूजुअली क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट्स में ऑलरेडी वेट ज्यादा होता है, तो इवन 5% का वेट लूज करना भी उनकी फर्टिलिटी को काफी कुछ इम्प्रूव करता है। यूजुअली जब पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि उनको पीसीओएस एंड मोर वेट गेन है, तो वी यूजुअली एडवाइज द पेशेंट कि आप ज्यादा नहीं, आप एक 5% भी वेट अपना कम करके आएंगे। अगर लेडी हमारे पास आ रही है, उसका वजन 90-92 kg है, तो हम यूजुअली उनको बोलते हैं कि आप अपना वेट एक ज्यादा नहीं, एक 5 किलो भी कम करके आएंगे तो आपके कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना विल बी मोर बेटर। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट पूछते हैं मिथ 3, क्या irregular menstrual cycles means that you are having the PCOS? So friends, the PCOS is one of the cause of the irregular menstrual cycle, but there are so many other reasons. The typical cycle ranges between 21 to 35 days. Other factors such as stress, thyroid disorders or other endocrine conditions, fibroids or extreme dieting can lead to irregular cycle. So this is the fact behind this. So अब ये इससे रिलेटेड ये myth 4 जो है, that women with PCOS can't lose weight. तो लड़कियां आती है मेरे पास ओपीडी में, मैम मैं तो बिल्कुल नहीं खाती, मैं या तो मैं सूंघ लेती हूँ तो भी मेरा वजन बढ़ जाता है क्योंकि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। तो क्या ऐसा है कि मुझे पीसीओएस है तो मैं कितनी भी डाइटिंग कर लूं, मैं कितना भी जिम जा लूं, मेरा वेट कम नहीं होगा? सो फ्रेंड, दिस इज अगेन टोटली अ मिथ. So weight loss may be harder for the women with PCOS, but it is not impossible. So many women with PCOS have a lowered sensitivity to insulin, a hormone that regulates the sugar in the blood. This is known as the insulin resistance, which is a risk factor for type 2 diabetes and make it difficult to lose the weight. तो अभी इसमें जो हम यूजुअली बोलते हैं, फ्रेंड्स इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट में शेयर करना चाहूंगी कि वेट लॉस का कभी ऐसा नहीं है कि आपको कभी बोलेगा तभी आप वेट लॉस के लिए जाएंगे. इट इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम योर ब्रेन. वंस यू टेक द फर्म डिसीजन, ऑफ कोर्स नथिंग विल बी गोइंग टू स्टॉप यू. तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है.
अब ये ऐसा लोग बोलते हैं कि मैम हम ऐसा खाना कब तक खा पाएंगे, हम 1 महीना खाएंगे, 2 महीना खाएंगे, वापस हम अपने खाने पर आएंगे तो वापस से हमारा वही हाल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं कि आपको 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए खाली आप ऐसा खाना खा रहे हैं, तो ऑफकोर्स अगर आपने अभी कम किया है, बाद में आप जैसा बढ़ाएंगे वापस फिर से बढ़ जाएगा। सो यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। इसमें आया अब मिथ 5 आता है, ऑल द वुमेन्स विद पीसीओएस हैविंग अ अनवांटेड हेयर ग्रोथ एंड एक्ने। सो हिर्सुटिज्म जिसमें हम बोलते हैं कि मेल्स के समान एक्सेसिव हेयर ग्रोथ को होना। तो अब सॉरी, अब इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ में अपियर ऑन द वुमेन फेस, बैक, चेस्ट, एब्डोमेन और थाइज। Hirsutism is usually an underlying sign of PCOS or another endocrine condition, but it is very important to remember all this. So yes, so this is the fact behind this. अब आता है, क्या हर एक पेशेंट को अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है पॉलीसिस्टिक ओवरीज को डायग्नोज करने के लिए? सो फ्रेंड्स, यूजुअली अगर पेशेंट को कुछ और प्रॉब्लम है, कभी किसी और प्रॉब्लम के साथ वो जा रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया, तो कई बार सोनोग्राफी में ही डिटेक्ट होता है कि आपको पीसीओएस है। पर अगर फीमेल इज लेसर देन 20 इयर्स तो हम हर एक को अल्ट्रासाउंड के लिए रिकमेंड नहीं करते। सो अगर पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स है या हाइपर एंड्रोजनिज्म के साइंस हैं, तो भी हम पीसीओएस का डायग्नोसिस वी कैन मेक इट। अब Myth 7 इसमें, जिसमें कि if you are not looking to get pregnant, you do not have to worry all about PCOS. See, अब इसमें बहुत important जो इसका आंसर है कि polycystic ovaries does not affect just a woman's fertility. It can impact her long-term wellness for the rest of the life, because अब जैसा मैंने पहले भी बताया कि PCOS से रिलेटेड जो महिलाएं हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज का होना, हाई ब्लड प्रेशर, लो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, स्लीप एपनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग इनको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उनके में आगे चलकर एंडोमेट्रियल कैंसर, तो गर्भ पिशवी के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो एक आता है कि एवरीवन विद पीसीओएस इज ओबीस और ओवरवेट। नहीं, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे लीन थिन पीसीओएस भी मिलते हैं। तो नाउ मिथ 9, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन पीसीओएस कॉजेस द वेट गेन। क्योंकि हर जगह हम ऐसा सुन रहे हैं, हमने पढ़ा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो क्या इस वजह से हमारा वेट गेन हो रहा है? So friends, the reality is that experts are not sure why the women with PCOS are often overweight. Many people say it's because of the insulin resistance, but while the weight gain causes this insulin resistance does not causes the weight gain. Now, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं, मैम क्या हमेशा हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खानी पड़ेगी, क्या इसके अलावा कोई उपचार नहीं है? मैं पहले दूसरे डॉक्टर के पास गई थी, पहले मुझे डॉक्टर ने 3 महीने के लिए खिलाया, दूसरे डॉक्टर ने मुझे 6 महीने के लिए खिलाया, लेकिन जब तक मैं 3 महीने तक पिल खाती हूँ तब तक ठीक रहता है, उसके बाद में वापस ऐसा शुरू हो जाता है। सो ऐसा मैं कब तक खा सकती हूँ और मैं कितने दिनों तक ओसी पिल्स पे रहूंगी? सो फ्रेंड्स, अभी एज आई जस्ट हैव डिस्कस्ड, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर समय खाली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही लेने हैं। बेसिकली इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आप जितना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे उतना जल्दी आपका पीसीओएस ठीक होगा। अब hormone birth control is a common way the doctors to treat the menstrual irregularities of PCOS, but the treatment for PCOS will largely depend on your end goal. Not all the time patients will be put under the birth control pill, rather encourages to address their hormonal health and more holistically with lifestyle measures like reducing the stress and eating an anti-inflammatory diet.
तो अब आती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पीसीओएस हुआ है? So we usually ask for the medical history, this menstrual period, weight changes, other symptoms, some physical examination of the patient in which the body mass index, BP, waist size, pelvic examination, blood test, ultrasound. So these all things we are going to check. तो आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी तक कई बार बोला कि वेरी इंपॉर्टेंट is the lifestyle modification. So lifestyle modification is the first and foremost. Second, we give in some patients the oral contraceptive pills. In some patients they give the metformin also. Some patients for the fertility we have to give some drugs for the induction. Yes, the last resort we can say for the surgery. So लाइफस्टाइल में अभी क्या चेंजेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉक है पेशेंट अवेयरनेस पर फोकस्ड है, तो अभी इसमें आप जो हम हेल्दी ईटिंग के टिप्स बोलते हैं जिसमें कि प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड को अवॉइड करना है, और ऐसे फूड्स जिसमें बहुत ज्यादा शुगर एडेड है उनको भी अवॉइड करना है. यू हैव टू ऐड मोर होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन मीट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, and this all will help to lower the blood sugar levels. So now अब इंडियन डाइट के हिसाब से हम क्या बताते हैं? फूड्स टू अवॉइड फॉर द पीसीओडी, व्हाट नॉट टू ईट. द स्टार्ची वेजिटेबल्स लाइक स्वीट पोटैटो, yam, peas, corn, fruit juices, the processed fruit concentrate and canned fruit. The Indian diet for PCOD should ideally contain the fresh or frozen fruit as they possess more beneficial fibers and nutrients. Now, amongst this vegetable oils, the oils which are having the highly processed can be inflammatory. So, healthier alternatives such as coconut oil, ghee, olive oil, or avocado oil, or the cold pressed oil. These days, the cold pressed oil is a very good alternative. All the sugary foods like gulab jamun, kulfi, gajar ka halwa, cakes, cookies, kheers has to be avoided. ऐसी सब स्वीट डिशेस जिनको सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है वो सभी आपको अवॉइड करनी है. फ्राइड फूड्स, अब इसमें जितना भी अगर आपको पकोड़े खाने का मन है, समोसे खाने का मन है, फ्रिटर्स खाने का मन है, तो अगर मैं किसी को भी ऐसा बोल दूं कि आप टोटली स्टॉप कर दो, तो दिस इज वेरी इम्पॉसिबल. तो उसके जगह पर आप उनका पहले एक हेल्दियर वर्जन लीजिए. आप चाहें तो उसको इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग यू कैन डू इट शैलो फ्राई, और you can otherwise better option you can use it air fryer. These days there are so many gadgets are available, तो आप उसमें कर सकते हैं. you have to change your some of the cooking tactics. तो आप उसमें हाँ आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको कैसे कुकिंग करनी है जिससे कि टेस्ट भी आ जाए और ऑयल का कंजम्पशन भी कम हो. सो बट ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ न्यू डिवाइसेस एंड न्यू गैजेट्स आर देयर. नॉन फ्राइड कुकरीज कुकवेयर इज आल्सो अवेलेबल, और आप बहुत कुछ अपने रेसिपीज में चेंज कर सकते हैं. यू कैन instead of deep frying, do the shallow frying. If you can do it long time marination, that will also give you the good taste. Then refined and processed food, the white bread, white rice, instant oatmeal, rice cakes and white pasta should be avoided. Red meat, pork, beef and mutton, that all should be avoided. And less intake of alcohol and caffeine. So this is very, very important. Specifically I'm telling because I practice in Pune, the metro city of the India. So अब मेरे पास पुणे में बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो बोलती है मैम हमने तो कब से आपने बोला था कि ये अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, हमने वो सभी कुछ कम कर दिया और तब भी हमारा पीसीओएस क्यों नहीं ठीक हो रहा है. सो फ्रेंड्स हियर यहाँ पर जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि अब इसमें क्या होता है, जैसा लोग बोलते हैं कि मैम मैं तो ना ये दोनों ही कम कर दिया और मैं तो कैफीन या कॉफी इंटेक भी मेरा बहुत कम है, एंड मैम आई डोंट टेक एनीथिंग, आई टेक ओनली द डाइट कोक. डाइट कोक इज हैविंग द 0 calories but still my PCOS is not going.
So friends, here I want to emphasize कि जो normal एक आप कोक पीते हैं उसमें तो 14 mg तक होता है एक कैन में, पर जो आप डाइट कोक लेते हैं उसमें एक को जो आप एक कैन ले रहे हो उसमें कभी आप चेक करिएगा दैट इज हैविंग द 42 mg ऑफ द कैफीन. सो इसमें नॉर्मल से कंपैरेटिवली 3 टाइम्स आपका ज्यादा है कैफीन, सो दैट इज नॉट करेक्ट. So coming to the next one. So this is one sample diet chart for the different days. So here you can see for the Monday आप ले सकते हो पोहा के साथ वेजिटेबल्स एंड ग्लास ऑफ फ्रेश ऑरेंज जूस. अब इसमें जो भी आपको लेना है या तो फ्रेश ऑरेंज जूस ले लो या आप एक ऑरेंज खा सकते हो, खाएंगे तो आपके में फाइबर ज्यादा जाएगा, दैट विल बी मोर गुड. लंच पे आप ले सकते हो ब्राउन राइस, कैबेज. फॉर द फ्रूट्स यू कैन टेक इन द स्नैक फॉर्म द एप्पल ले सकते हो, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का. डिनर पे आप व्हीट डोसा विथ रोस्टेड चना दाल चटनी ले सकते हैं. ट्यूसडे के लिए हमने देखा है कि वेजिटेबल ओट्स और दलिया. खाने में आप रखिए ब्राउन राइस, बीटरूट पोरियल, दाल एंड कर्ड. Again in the snack form you can take roasted chana. This is also very important. Again for the dinner you can take the chapati and sabji. Then for here friends I also want to emphasize, अभी जैसे roasted चना है तो वो भी आपको एक फिस्ट भर के एक छोटी छोटी कटोरी ही लेना है. ऐसा नहीं कि रोस्टेड चना लिखा है तो आप वो आधा किलो रोस्टेड चना खा जाएंगे. नो. Up now coming to this Wednesday, you can take either the ragi dosa or rava dosa. Ragi is one of the gluten-free flour which is available in India very easily and very rich and good source for the calcium. So you can take it that with the simple mint chutney. Don't try to put a tarka on that chutney or put any other agents on that. Then you can take that brown rice pulao with raita or then whole wheat bread with almond, peanut and butter, besan chilla with vegetables. Friends, here I want to clarify कि हेल्दी चीज में और लेस कैलोरी की चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है. सो सारी चीजें जो लेस कैलोरी की हैं वो उतनी हेल्दी नहीं होती, और सारी चीजें जो बहुत हेल्दी दिखती है वो ऐसा नहीं कि वो लेस कैलोरी है. अब इसमें मैं आपको एक बताऊंगी, जैसे हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि हमको भूख लगती है तो हम चना खा सकते हैं या हम मुट्ठी भर के फॉक्सनट खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं. फ्रेंड्स, लेकिन कभी आपको पता है क्या, एक मखाना जो आप 100 ग्राम अगर मखाना खाते हो तो उसमें 482 के बराबर कैलोरीज होती हैं. सो दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू कीप रिमेम्बर. अब थर्सडे को जैसे हमने बोला वेजिटेबल उपमा, ब्राउन राइस, स्प्राउट्स, कर्ड, फिर रोस्टेड मखाना जो आप ले रहे हैं तो एक आपको फिस्ट से ज्यादा नहीं लेना है. देन इन द नाइट अगेन द चपाती एंड वन सब्जी. Friday we are putting this idli with coconut chutney. Then for lunch the dalia khichdi with vegetables and curds. Then handful of peanut or walnuts. Then roti with sabji. You can take this sprouted also, but if you are very fond of eating the sprouts, especially हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत सारे लोग sprouts की सब्जी खाना बहुत पसंद करते हैं, तो try to make that sprouts at home only. बाहर से वो नहीं लाइए क्योंकि उसमें बहुत सारे infections होने के खतरे रहते हैं, especially salmonella के बहुत सारे patients मैंने देखे जो बाहर से लाके खा रहे हैं, बहुत सारे patients को infection होता है. Then for the Saturday, or you can take paratha either of broccoli or gobi. Broccoli और gobi दोनों ही calories में बहुत कम होते हैं. Then again you can take on the lunch the brown rice with stir fried spinach, moong sprouts and curd. Then snacks में you can take the banana. But friends, here also please remember, ऐसा नहीं कि आपको केला खाने के लिए बोला है तो आप 6-7 केले खा रहे हैं. एक केले में भी अराउंड 100 कैलोरी होती है, 100 to 104 कैलोरीज. रात में आप चपाती, रोटी एंड लो फैट पनीर करी विद सैलेड. अगेन हियर यू हैव टू रिमेंबर, जो हम पनीर लाएंगे वो हमें देख कर लाना है जो लो फैट कंटेंट वाला हो एंड विद लेस कैलोरी इनटू. और फिर संडे के लिए आप रागी बनाना के पैनकेक्स ले सकते हैं और द क्विनोआ फ्राइड राइस with vegetables and sesame seeds. Then vegetable snacks में आप ले सकते हो baked vegetable cutlets and sweet potato tikkis. And again on the night you can take the bajra moong or peas khichdi.
So तो अब आप पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए बेस्ट फूड क्या है जिसमें भी हाई फाइबर है, जैसे कि ब्रोकली, मस्टर्ड ग्रीन, सरसों का साग, स्पिनच, पालक, स्वीट पोटैटोज, green beans, cauliflower, snake gourd, carrots, these all are good. Fruits में you can take apple, guava, pineapple, papaya, melon, pomegranate. These all are considered to be good. Among the pulses, the split peas, green moong, yellow moong, dried bananas, dried beans, chana dal, lentils, soya bean and chickpeas. These all are considered to be good. होल ग्रेन्स में आप होल व्हीट, ब्राउन राइस, बकव्हीट, क्विनोवा, ओट्स, पोहा एंड मूसली या बार्ले ले सकते हैं. सो इसी प्रकार से नट्स में पेशेंट मुझे पूछते हैं मैम क्या हम पिस्ता खा सकते हैं, क्या हम बादाम खा सकते हैं, क्या हम काजू खा सकते हैं क्या. सो फ्रेंड्स यू कैन टेक द आलमंड्स, हेज़लनट्स, फ्लैक्स सीड्स, पाइन नट्स एंड सीसम सीड्स. Among this, the Indian herbs and spices which are very considered to be very good for this is the fenugreek, मतलब मेथी, cinnamon, दालचीनी, turmeric, haldi, mint, tulsi, ginger and cloves. These all are considered to be very good for that. So weight management, as we have just discussed, either the exercise of 40 minutes is mandatory. आप या तो 10,000 steps चल रहे हो पहली बार दिन में एक बार, या फिर आपको एक्सरसाइज करनी है मिनिमम 40 मिनट्स, चाहे एक साथ कर लें 40 मिनट्स या आप 20 मिनट्स के 2 ब्रेक पे कर लें. सो दैट व्हाट एवर इज फिजिबल फॉर यू अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट योगास व्हिच हैज बीन एडवाइज्ड. तो अभी बहुत स्टडीज आई हैं कि पीसीओएस के पेशेंट्स में depressive orders भी काफी मिलते हैं. Around 11 to 25% of the Indian women with PCOS suffered from depressive orders. So practicing mindfulness, meditation and breathing exercises are some complementary and alternative therapies that can help to fight depression and anxiety. So this we have already discussed. अभी तो खैर कोविड कम हो रहा है, तो कोविड के टाइम पर भी हम पेशेंट्स को बोल देते कि आप जितना हो सके पानी पिए. पहले जब फिजिकल एक्टिविटी के लिए बाहर रिस्ट्रिक्शन था, तो आप घर पर ही जिस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, डांसिंग, जुम्बा, एनीथिंग यू कैन डू दैट. अभी जहाँ पे इसमें मैंने लाइफस्टाइल चेंज के लिए बोला, तो वहां पर जैसे मैंने बोला कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग आपको नहीं करना है या कम से कम करना है. आपको पानी जितना हो सके ज्यादा पीना है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एंड टाइम. Like this, many more informative videos on my YouTube channel. तो आप please you can subscribe, like and share my YouTube channel for many more such informative videos. Before I wind up, again, once again, the Happy International Women's Day to all of you. This is what stands for the P for pretty, C for confident, and O for obviously strong. So thank you friends again, and thank you to Shield Pharma also for providing the platform. Special thanks to Dr. Nishan and Chitra. Yeah, we can take if any questions. Yeah, good doctor. Yeah, thank you, Dr. Sana. Dr. Kinney, how are you, Dr. Kinney? Dr. Kinney has joined all the way from the UK. Okay. Seema madam kasha hai? Hello. So let me see if any questions. Yeah. Thank you, Dr. Shabina, Dr. Shahana. Yeah, thank you. Yes. Okay. Can white rice can be replaced with brown rice and dalia? Yes, this is a very very good option. Yes, आप कर सकते हैं white rice को, क्योंकि हाँ, पर अभी भी निशांत इसमें ना एक बहुत अच्छा बोलूंगी, एक पेशेंट आते हैं बोलते हैं मैम हमने तो इतना महंगा ब्राउन राइस भी खरीद लिया, लेकिन हमको वो टेस्टी नहीं आता वो खाने के बाद में.
सो टेस्ट तो अब या तो हमें टेस्ट ले ले या फिर अपना लाइव पीसीओएस रख लें। तो धीरे धीरे यू हैव टू चेंज। ऑफ कोर्स जो भी चीजें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की है, ऑफ कोर्स यू हैव टू ग्रेजुअली कम टुवर्ड्स अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अच्छा खाना किसको पसंद नहीं होता, सभी को पसंद होता है। तो वी हैव टू ग्रेजुअली, अगर हमें कुछ पाना है तो कहीं ना कहीं तो हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। Today only in the evening I have seen one patient of PCOS. She's a very 21 years of girl. She's asking me, ma'am, I want to look like a Katrina. हाँ? तो आप मुझे आप मुझे कुछ भी कर दो, लाख रुपया खर्चा करवा लो, 2 लाख रुपया खर्चा करवा लो, but I want to look like a Katrina. So this is my dream. She's told me this is my dream to look exactly like her. So I told her, dream always you are seeing with your closed eyes. तो अगर आपको ड्रीम को सक्सेस करना है तो उसके लिए तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो अब अगर आपको ड्रीम है तो वो सपना ही किया, अगर आपको कुछ पूरा करना है तो आपको नींद ही नहीं आनी चाहिए। यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी। फॉर्म डिटर्मिनेशन के साथ। फॉर्म डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर शबीना has one question. What about intermittent fasting as lifestyle change? Yeah. So Shabina, see, this is also a very very good question. Yes, most of the अभी तो बहुत सारे डाइट्स आते हैं, आप देखोगे तो YouTube is full of दीक्षित डाइट, ऋतुजा दिवेकर डाइट, हाँ, intermittent fasting. Yes, but what I think and what I experienced also, yes, intermittent fasting is very very good. तो intermittent fasting अच्छा है। आप पर इसमें भी ऐसा नहीं कि आपको एकदम से आपको जाना है, पहले आप 8 घंटे के लिए करिए, फिर आप 12 घंटे के लिए करिए, फिर 16 घंटे के लिए करिए। हाँ, इसको आपको लाइफस्टाइल चेंज, एक आपको लाइफस्टाइल चेंज ही करना है। पेशेंट को हम ऐसे ही समझाते हैं कि आप कुछ दिन के लिए करोगे फिर बंद कर दोगे तो ऑफ कोर्स तो वो प्रॉब्लम होगा ही होगा। वंस वी आर यूज्ड टू कि नहीं हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी बन गई है। सो यस, ऑफ कोर्स द इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी वेरी गुड. Not only for the PCOS but for so many things the intermittent fasting is very very good. मैम एक और क्वेश्चन है मेरे एंड से। लाइक एडोलेसेंट पीसीओएस के पेशेंट्स जब आते हैं तो अगर वो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस है, उनको एक्ने और वो सब इश्यूज हो रहे हैं पीसीओएस से, तो आप उनको क्या एडवाइस देते हो? नॉन वेज कम कर देना है या बंद कर देना है? नहीं, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। किसी को भी आप कोई चीज बोल दोगे ना बंद कर दो, तो दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। फिर वो आपके सामने नहीं खाएगा लेकिन वो चुरा कर खाएगा वो चीज। हाँ, फ्रिज में जो चीज रहेगी तो वो बाद में रात में निकाल कर खाएंगे। तो आई ऑलवेज टेल दैट यू हैव टू ग्रेजुअली कट ऑफ, ग्रेजुअली। अभी जैसे आपने एडोलेसेंट्स के लिए बोला तो उनकी यूजुअली मॉम्स आती है साथ में कि मैम अभी से देखो इसका वजन इतना ज्यादा हो रहा है, हाँ, और इसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो अभी हम क्या करें, ये तो खाली दिन भर वेफर खाती है या नॉनवेज खाती है। तो यूजुअली आई टेल देयर मॉम्स ओनली कि आपको कुकिंग पैटर्न थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी एडोलेसेंट लड़की तो उसको बेचारे आजकल वो लोग अपने कॉलेज और इन सबसे ही इतने मरे हुए हैं कि उनके पास तो टाइम नहीं कि वो कुक करेंगे। तो उनकी मॉम को मैं बोलती हूँ कि आपको अपना कुकिंग स्टाइल कुछ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इफ यू आर पुटिंग 2 टीस्पून्स ऑफ ऑयल इंस्टेड ऑफ दैट यू पुट 1 ऑयल। या उसको नॉनवेज का बहुत शौक है तो इंस्टेड ऑफ यू कैन गिव हर द ग्रिल्ड ऑप्शन, आप ग्रिल करके दे सकते हो या एयर फ्रायर में दे सकते हो। तो किसी भी बच्चे को हम, बच्चा क्या किसी बड़े को भी अगर हम बोल देंगे कि पूरा बंद कर दो तो नॉट पॉसिबल। अब ऐसे ही किसी कुछ लोग होते हैं जिनको समोसे का बहुत शौक है या वड़े पाव का बहुत शौक है, तो फिर उसमें भी क्या होता है, आप एकदम से बोल दोगे कि बंद कर दो तो नॉट पॉसिबल। तो यूजुअली एडवाइस कि हाँ आप पूरे की जगह आप आधा खा लो, पहले आधे में आप मन मार के सेटिस्फाई करना ही है। अगर आपको कुछ पाना है तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन करना ही है। सो देन ग्रेजुअली वंस यू गेट द गुड रिजल्ट्स, हाँ आपका वेट कम हो रहा है, आपको 4 लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया तो दैट ऑटोमेटिकली बूस्ट यू कि हाँ अभी अच्छे दिख रहे हैं हम, तो यस ठीक है अभी और भी लोग बोल रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली जब आपको रिजल्ट आता है तो ऑटोमेटिकली आपको और करने का मन होता है। इसमें क्या होता है, कुछ समय ऐसा होता है कुछ लोगों को क्या होता है, इनिशियली उन्होंने डाइट पैटर्न चेंज किया, उनका फटाक से वेट फॉल लूज हुआ, मतलब वाटर रिटेंशन जितना होता है निकल जाता है, बाद में उनका वेट स्टक हो जाता है। तो लोग बोलते हैं मैम अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब हम क्या करें, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए।
तो जो आपने वेट गेन किया है वो सारा वेट गेन एक दिन में थोड़ी गेन कर लिया था, तो वेट लॉस भी होगा, तो प्लीज हैव सम पेशेंस। तो ऐसे पता नहीं कितनी ही लड़कियां आती हैं जो बोलती है कि मैम मतलब पीसीओएस तो निशांत एज यू नो इज अ वेरी बर्निंग प्रॉब्लम। एक पेशेंट मुझे बोलती है मैम अभी ब्रांड नेम आई कांट टेक हियर, हाँ, बट यू ऑफ कोर्स अवेयर द मायरस्टॉल का सैशेट शी इज टेकिंग, तो ओबिस, हाँ, तो शी वाज वेरी हैप्पी इन द 1 month, first month she lost 2.5 kg, 2.5 kg विदाउट एनी डाइटरी चेंज। वो बोलती है मैंने वड़ा पाव भी खाया, मैंने सब कुछ खाया, हाँ। तो बोलती है कि आपने तो मैम दिन में एक सैशेट लिखा था, बट फ्रेंकली आई एम टेलिंग मैंने दिन में 3 सैशेट भी पी लिए, हाँ, 3 सेशन भी पी लिए कि फर्स्ट मंथ में मेरा इतना अच्छा है कि डॉक्टर तो बार बार बुलाते हैं, डॉक्टर का क्या, डॉक्टर तो बार बार बुलाएंगे फिर यही डोज चेंज कर देंगे। तो नेक्स्ट मंथ शी हैज टेकन द 3 सेशंस इन अ डे, और तो भी वेट पर कुछ ना इधर से फर्क हुआ ना उधर से फर्क हुआ। तो शी वाज डिसअपॉइंटेड कि मैंने खर्चा भी कर लिया और अब मेरे को कुछ फर्क नहीं हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी है, वॉट एवर द थिंग्स एंड डोजेस आर डिसाइडेड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक, हाँ, accordingly you have to take, of course, plus some are very fond of the alcohol and smoking। अब मैं उनको बोल दूं अल्कोहल स्मोकिंग बंद कर दो तो वो डॉक्टर बदल देंगे, लेकिन आपको अल्कोहल स्मोकिंग नहीं बंद होगा। सो आपको जो भी करना है, यस ठीक है, अभी दिस लाइफस्टाइल इज लाइक दैट, तो यू कैन टेक दैट इन द बैलेंस फॉर्म। सो किसी भी चीज की अति बहुत अच्छी नहीं होती, तो लाइक दैट वी ऑल ट्राई टू एक्सप्लेन। हाँ, बट फॉर द सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नाउ एवरीवन इज वेरी मच ओरिएंटेड, सभी लोग चाहते हैं कि हम अच्छा दिखें और हमें अच्छे से पीरियड्स प्रॉपर हो जाएं। तो यस, ऑफ कोर्स द पीसीओएस इज मेनली द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जितना हमने जल्दी लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे उतना सही रहेगा। हाँ, फिर एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, तो वेरी ट्रू, लाइक अभी मोस्ट ऑफ द टाइम जो नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग उसी में रहते, फिर कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, तो वो भी काफी इम्पेक्ट कर रहा है उनकी लाइफ। वेरी ट्रू निशान। तो यूजुअली जो होता है, आप, मैं जैसे लड़कियों को बोलती, लड़कियां बोलती ना कि मैम हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्लासेस चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, हम कब, तो बोलती है अगर आपको डांस का शौक है तो आप हम पर ही गाना चला लीजिए और आप साथ में डांस करते रहिए, हाँ, डांस, हाँ, हाँ। सो और कुछ बोलते हैं, हाँ, कुछ भी कर लीजिए, जुम्बा डांस कर लीजिए, आपको जो भी फॉर्म का आपको डांस पसंद है आप उस टाइम पे कर सकते हैं। और एक उनको बोलती हूँ कि ठीक है, लोग बोलते हैं हम मैम पैदल नहीं चलकर नहीं जा सकते, हमें बहुत थकावट होती है, तो ठीक है, एटलीस्ट आप स्टेयर से उतर के चले जाओ। अगर आपको चढ़ने में थकावट हो रही है तो उतर तो सकते हो, उतरने को 5-6 मंजिल आप आराम से उतर के जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उनको खुद ही करना है धीरे धीरे वीकेंड से। अब ऐसे ही लड़कियां मुझे बोलती है कि मैम हम बाहर जाते हैं तो उस समय तक तो बहुत तेज धूप हो जाती है, तो आपको वो टाइम नहीं है तो आप आपके घर की छत पर थोड़ा सा टहल लो, मतलब 20-25 मिनट्स तो दे हैव टू टेक आउट, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। या आई थिंक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर, या Dr. Shahana, see this, what you asked, that at what stage you suggest surgery and who are the ideal candidates for it. So, Dr. Shahana, usually in my 95% of patients, you can say, I usually advise this lifestyle changes. And some patients, I give the supplements of myoinositol, evening primrose oil, they all are giving, and omega fatty acids. And in some patients, I'm giving the green tea extract also. Not only in the means green tea form, I am giving the green tea extract in the capsules form also. So कुछ patients में उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, अब आप जो पूछ रहे हैं, हाँ, अगर पेशेंट ऐसी है, जैसे पेशेंट, इफ द पेशेंट इज कमिंग ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 38-39 years, क्योंकि these days it's very common the late age of marriage, और तब पेशेंट आई और आपने देखा कि आपको ह्यूज पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, एंड पेशेंट हैज अ प्लान कि उसको 2-3 महीने में या उसके हस्बैंड को फ्लाई करना है या उसको फ्लाई करना है, आपके पास टाइम नहीं है, इन दैट केसेस ओनली वी सजेस्ट फॉर द लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग। एंड ड्रिलिंग के साथ ही फिर हम उसको कोई ना कोई एआरटी पे लगाते हैं, असिस्टेड बर्निंग टेक्निक पे, आईयूआई और आईवीएफ ऐसा कुछ करने के लिए बोलते हैं।
but 90% is from the lifestyle, and that means mainly is the diet and exercise का खेल है. Because if you tell surgery also, बहुत जल्दी patient नहीं ready होगा unless and until the patient is fed up of taking so many of treatment. Yeah. मैम ये PRP therapy is that useful in PCOS patient? For PCOS treatment? No, for the cosmetic treatment. No, for the cosmetic treatment we are doing. For the PCOS के लिए नहीं. PRP जो हम देते हैं ना, मतलब उनको जो cosmetic problem है, cosmetic issues है, हाँ, एक्नी के स्कार्स हैं उसके लिए देते हैं, हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए देते हैं PRP, मतलब इंजेक्ट करते हैं. बाकी PCOS के ट्रीटमेंट के लिए PRP नहीं देते हैं. PRP what I am giving in the patients of the low AMH. Low AMH PCOS के patients में तो high AMH रहता है. जिन patients को low AMH है, means that is not for this PCOS, उन patients में PRP का injection देने से we are getting good results. पर अभी वो क्या है कि FDA ने उसको approve नहीं किया है, तो what this PRP therapy for the low AMH, lot of doctors are giving and lot of literature also, but it is not approved by FDA for this indication. So I hope the point is clear to you. Yes. तो उसके लिए नहीं यूज, मतलब उसके लिए बहुत पेपर्स नहीं आए हैं, but yes, ऑफलाइन देते हैं उसके लिए. हाँ, PCOS वही क्वेश्चन था मेरा, कॉस्मेटोलॉजी या जो इश्यूज होते हैं PCOS में, एक्ने, हेयर फॉल, उसके लिए देते एक्नी मार्क्स पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. मतलब मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देती हूँ. इट गिव्स अ ड्रामेटिक रिजल्ट्स. फर्स्ट, अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है तो पहले उसका इन्फेक्शन आप ट्रीट करिए, क्योंकि जो उनको बहुत सारे एक्नी होते हैं, इन्फेक्टेड कॉमिडोन्स होते हैं, तो आपने पहले एंटीबायोटिक देके क्लियर किया, उसके बाद आप जो भी ऑइंटमेंट दे रहे हैं, और तब भी अगर पेशेंट का स्कार है तो PRP मीन्स, मैंने तो ऐसा देखा कि जादू की तरह काम करता है. मतलब जब हम पेशेंट को देते हैं ना, within 4 weeks 6 weeks पेशेंट एकदम ग्लो स्किन करके आते हैं. हाँ, ग्लो करके आते हैं. एंड इन सम पेशेंट्स तो निशांत, आई डू दिस माइक्रोडर्मा एब्रेशन आल्सो. तो माइक्रोडर्मा एब्रेशन करके आई पुट दिस PRP थेरेपी. तो PRP से मतलब बहुत अच्छा स्किन पे ग्लो आता है. हाँ. तो जब बहुत सारे जैसे पेशेंट हैं, अभी जैसे मिलेस्मा हो जाता था, अभी तो मिलेस्मा के लिए वी आर गिविंग सो मेनी ऑफ ट्रीटमेंट. तो मैं लेजर तो नहीं करती हूँ, मतलब अभी आई एम प्लानिंग टू बाय लेजर फॉर दैट. तो अभी मैं जितना भी काम करती हूँ कॉस्मेटोलॉजी का, आई डू विद द PRP. तो दैट गिव्स गुड रिजल्ट्स. एक और क्वेश्चन है, एक्नेंथिस नाइग्रोसिस, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है अगर वो हो गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है निशांत, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं इसके बारे में. हाँ, तो एक्नेंथोसिस नाइग्रिकेंस ना, अगर आपका PCOS जब ठीक होगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. मैंने कितने ही पेशेंट देखे हैं ऐसे. हाँ, इनफैक्ट एक पेशेंट थी जिसको एकदम वेलवेटी स्किन थी, एक्नेंथोसिस नाइग्रिकेंस की एकदम वेलवेटी स्किन थी, रेड कलर की. That patient was she was not affording to go for the PRP also. हाँ, और जो हम क्रीम्स देते हैं उसके लिए भी वो रेडी नहीं थी. तो उसका मतलब PCOS ठीक होने के लिए कुछ 9 महीने लगे. मतलब she has reduced her weight around 15 kg. उसका ऑटोमेटिकली वो कम होता चला गया, not that dramatically but gradually it is turned down. हाँ, पर अगर पेशेंट ऐसा आपका पेशेंट है जो अफोर्डिंग पेशेंट है, तो उसको जब आप PCOS के लिए आप मायोनिसिटॉल के प्रिपरेशन दे रहे हो, क्योंकि मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं देती हूँ, सबका अलग अलग रहता है, तो यूजुअली आई गेट द गुड रिजल्ट्स विद दिस मायोनिसिटॉल. क्योंकि मेरे पास पेशेंट डायरेक्ट नहीं आता है, वो 10 जगह घूम कर कई जगह वो OCPs ले चुका है कि मैम वही ट्रीटमेंट हम ले चुके हैं, तो बार बार हमको वो नहीं चाहिए. तो I usually give this myonisitol, and some patients I give metformin also, so that gives the good results. डॉक्टर शाना इस क्वेश्चन ले लीजिए, क्या क्वेश्चन निशान? हाँ मैडम, apart from metformin, any other drug to reduce insulin resistance? Yes. So Dr. Shana, we are just discussing for that only the myonisitol we are using, having a very very good results. अभी myonisitol के भी बहुत सारे combinations available है, मतलब 4 ग्राम तक हमको डोज देना है. तो some different companies having a different preparations, myonisitol with chromium,
मायोनिसिटॉल विद अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हाँ, सो मायोनिसिटॉल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप जब भी पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट को इतना बता कर दीजिए कि उसको प्रॉपर लेना है 4 ग्राम। तो और एटलीस्ट 6 वीक्स के बाद ही कुछ चेंज आएगा, उससे पहले कुछ चेंज नहीं आएगा। 6 वीक्स टू 3 मंथ्स उनको लेना ही लेना है। तो दोज पेशेंट्स हु आर रिलक्टेंट टू टेक मेटफॉर्मिन, या कुछ पेशेंट्स में मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट आता है। मेटफॉर्मिन का एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नॉशिएटिंग फील आता है, पेशेंट को गिडीनेस होता है, डिजीनेस होता है। तो उन पेशेंट्स में आप मायोनिसिटॉल ट्राई कर सकते हैं, दैट गिव्स अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट। और यू कैन यूज actually I use some chromium supplements also. So क्रोमियम के बहुत सारे प्रिपरेशन ना आपको अमेज़न पे मिल जाते हैं, तो आप पेशेंट को बोल सकते हैं, पेशेंट वहां से भी ले सकते हैं। हाँ, यस। तो Shabina, ma'am, as a question. हाँ, How much myoinositol for how long can it be solely be used to regularity menses along with lifestyle changes? यस यस। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मिनिमम 6 वीक्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। यूजुअली 3 मंथ्स तो देते हैं, पर एक साथ पेशेंट को 3 मंथ्स का प्रिस्क्रिप्शन दोगे तो पेशेंट दोबारा नहीं आएगा। आप पहले 6 वीक्स का दो, 6 वीक्स के बाद बुलाओ पेशेंट को, Effective होगा कि नहीं? हाँ। तो यूजुअली तो आता ही है रिजल्ट। आई एम यूजिंग मींस लॉट ऑफ दिस, तो गिविंग अ गुड रिजल्ट्स। Besides it, some companies are having this myoinositol along with N-acetylcysteine. So N-acetylcysteine के लिए भी बहुत सारे स्टडीज आए हैं नेक के लिए। उसका एक ही प्रॉब्लम होता है कि नेक का स्मेल इज वेरी डर्टी। तो हाँ, बहुत ही मतलब जब कंपनी वाले भी आते हैं, प्रोटीन एक्सेस, हाँ, बहुत ही रोटन एग का स्मेल आता है। तो पेशेंट भी बोलता है कि मैम वो खा लिया तो मुंह से ऐसा स्मेल आता रहता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो पेशेंट्स ले लेते हैं ना N-acetylcysteine के, वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। More questions. Okay, one more question is from Dr. Shahana. When does the results start to show on ultrasound? Okay. मिनिमम कोई ट्रीटमेंट के बाद? मिनिमम 8 वीक्स, मिनिमम 8 वीक्स डॉक्टर, मैक्सिमम 12 वीक्स। बेटर यू टेल द पेशेंट कि हम 3 महीने के बाद सोनोग्राफी करेंगे। 12 वीक्स, देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग द सोनोग्राफी रिपीटेडली। आप 12 वीक्स के बाद करिए। Dr. Nishan, I think we can wind more up. questions. हाँ. So we can wind up, ma'am. Yeah. So this was very nice session from you, ma'am, on a patient education program for PCOS. And I hope all the participants and delegates have enjoyed your webinar for today. So thank you, Nishan, and thank you, Chitra too. So friends, please stay tuned with us. Again, me and Nishant will join you on Thursday at 8 p.m. Our another show, the Icons and Conversation with Dr. Ritu. As all of you are aware, this is the endometriosis. March month is for the endometriosis prevention month, and this week we are having Professor Samina Chaudhary all the way from Bangladesh. She is a stalwart in the field of the endometriosis. So we are going to discuss with her a very important topic, the prevention of endometriosis. So please do join with us on this on the Thursday, a day after tomorrow. And on the next Thursday, we are having a Dr. Rangina all the way from the Nepal. I just spoken with her. So we are, I will send the details. I have just spoken with her. So we are going to discuss with her the from basics to advanced hysteroscopy. Actually, when I was discussing with her, she told me she will take the lecture on advanced hysteroscopy. I told her no, we will start from basic to advanced, so all the doctors can be benefited. So and on the 24th, the 3 weeks I have just spoken, means 10th we are having Professor Samina Chaudhary, 17th we are having Dr. Rangina, and 24th Dr. Nandita Palshetka madam has confirmed with me. So madam is going to speak on the luteal phase support. So आगे के dates I will declare. Sure. Till April I had spoken with the speakers. So we will. So please stay tuned with us. Bye. Bye everyone. Bye ma'am. Bye.